have one more concept. So last you have studied about the binary search. Okay, so I have given you two problems for binary search. You can attempt that problem on the basis of iterative method, and second problem on the basis of divide and conquer rule. So according to that thing, you just find that the complexity of both of the algorithm is O log n. Okay, so these things you have covered. Now today we will also going for one more means sorting technique, that is the merge sort. I think already you have means studied this thing merge sort. So anyone can confirm for this? Kindly Yes, confirm. sir. Okay, so merge sort. So then my work is easy because I am giving the question of merge sort today. So if you will check on the code Ginger. Okay, so today I am giving you only one question because on the Saturday we have one more lab for this week. So I am not means putting two questions for that thing. Means today I am giving you one question and one question I will giving you on that particular day or Saturday, because consecutive three labs in week, so that will be hectic for you. अगर मैं six questions दे दूंगा then आप लोगों के लिए भी टाइम चाहिए आप लोगों को, so that's why I am not means giving you extra question for that. I am giving you one question today, and deadline is 5th September. I am also giving the deadline, means today is second, so I am giving you till the Sunday. Okay, so the question is like, if you know the merge sort, then I am telling you the question is like that. I am giving you a array, and I am saying to you just copy that array. Means you can see in this part directly. First I will tell you the question, then I will go for the, if you will say sir merge sort हमें याद नहीं रहा है, आप थोड़ा सा बता दीजिए, then I will go for this particular part. Otherwise पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ. If student know the merge sort, they can directly attempt the question. Okay, question is like that. Some array you have. Okay, some array you have, and array is given to you like this. Means some element 2 4 6 8, I can say. This is 1 3 5 and 7. This type of array is given to you. Okay, and this array is sorted into two parts. Means one part is sorted. You can see this part. This is sorted array, sorted sub array, you can say. That is the sorted sub array. Okay, in a array you have two sorted sub array. Okay, this is also sorted sub array 1 3 5 7. So I am saying sorted sub array को क्या करो, एक पर्टिकुलर array में कॉपी कर लो. You can make a array on the basis of 2 4 6 8. Okay, so you can giving name a, and second इसको भी आप कॉपी कर लो, इस पार्ट को भी कॉपी करो दूसरी array में 1 3 5 7. Okay, this is b. So now you have two array. This is so initially in the input you have one array, but at the last when we are copying two sorted sub array in a particular array, then you have two sorted two sorted array, you can say a and b, two sorted array. Then you have to merge these two array. इन दोनों को merge करना है. Okay, so merging means you have to do a exercise like that. All the elements will be sorted. So at last, what you will find, the output will be like this. Output will be like this. So this is 1 2 3 4 5 6 7 and 8. The output will be like this. Means first element will come here, from second element will come from this array. So on the basis of two array you have to sort this type of array. Or you can say, sir, when I am copying this is my input. Okay, so when I am copying this part, so this part will be removed here. So originally what I am doing, which is given, this array is given to me. Again I am sorted this part. Means after merging this part, I am taking the output from giving array. तो मैं जो भी आंसर आएगा वो इसी array में सेव कर लूँगा. 4 5 6 7 and 8. So question is clear. What is given in you in this question? So you can read this. Dr. Gupta has a list of n numbers, and within the list
he has to sub sorted list. Okay, so I have told you what is the means of that. First, he wants to copy these sub list into a two list, and after that combine both of the list in a sorted order in the given list. Okay, तो यही है जो आपको गिवन लिस्ट दी है। जो गिवन लिस्ट है आपके पास, उसमें से पहले कॉपी करो, दो सब एरे बनाओ, उन दोनों सब एरे को लास्ट में मर्ज सॉर्टिंग, इसको सॉल्व किससे करना है, यू विल यूज द merge sort, and you will combine this thing, and you will find this will be your answer. So question is clear. What is the question given to you? Is it okay? Everyone please Yes, sir. reply. Okay, other student, so should I go for merge sort, or you will revise and you will attempt? You can tell me, because today I am giving you one question only. So just you tell me, sir, revise some concept, then we will attempt. So it will be okay, otherwise you can Yes, sir. attempt, Okay. So means revise. रिवाइज करा दूँ। चलो मैं एक छोटा सा आई एम नॉट गोइंग फॉर द डायरेक्ट दिस डायरेक्टली गोइंग ऑन दिस क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू द कंसेप्ट ऑफ मर्जिंग। ओके, सो आई एम टेलिंग यू द कंसेप्ट ऑफ मर्जिंग, बिकॉज मर्जिंग प्रोसीजर क्या है, आई एम टेलिंग अबाउट दिस दैट पार्ट। ओके, सो मर्जिंग, और डायरेक्टली यू कैन से मर्ज। ओके, मर्ज प्रोसीजर, प्रोसीजर। So what is the scenario? The scenario is like that. If you have two array, so I am taking one array like A is equal to, you can say 1, 3, 6, 8, 10, or you can take anyone 14, and I can write the some indexes here. So I can write the indexes. I am starting one. Normally it is started 0. Then I am starting 1. So there is no problem. So 6 indexes are there. Okay. So again I have. So you can see in the merge sort you have the sorted array again. In the binary thing you have the sorted array, and in this also you have the sorted array. So second array I will take. So size may be equal or size may be differ. So I am taking more size here. So you can check. This is 2, 4, 7. I can take 7, 9, 11, 18, because this should be sorted. So that's why I am taking the increasing numbers. Okay, or 23, or I am taking 25, what any value I can take. Okay, so this is also sorted way. So I can take the indexes also here. So I am removing this part first. So you can put 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So 9 elements are there in this B array, and 6 elements are there in this 6. So anyone can tell me, if I just want to merge these things. Merge means I just want to combine, and I just want to take another array. I just want to take one another array like this. So what should be the size of that C array? Means, so you can approximate that thing, कि minimum, what should be the minimum size of these, if you are merging these things. So what should be the minimum size of the C array? So anyone can tell me? 15. 15, very good, because 9 elements are there and 6 elements are there. So at least you have to take the C array with the size of 15. 15 elements should be there. Okay, so you can make like this. So I am not taking all the elements, so you can understand. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, dot dot dot. Last you can take 15. You can take more than 15. That is okay. More than 15. If you will take more than 15, then what will happen? Other elements. So this is already, I think you know that part. Means if you will define like a 100, और इन एलिमेंट 15 एलिमेंट को तो आपने डिफाइन कर दिया कि 15 एलिमेंट आपके ये 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर। उसके बाद आपने ये 100 दे दिया, तो ऑल द एलिमेंट्स विल बी जीरो। मीन्स जीरो अपने आप ले लेता है एक एरे। ओके, सो दैट इज ओके। So remember this part, at least minimum size should be the addition of the to this the total element of A array and total element of B array. You will combine these things, so you will add the
total element. So 15, at least 15 elements should be present in the C array. Okay, then what you will do? Now I am telling you, just take, I am taking one thing. What I am doing, I am taking, for indicating the position, I am taking I here. This is I. For indicating, this is J, and indicating the indexes, I am taking this K. Okay, so now you can understand. So ijk is the position, okay, current position, ijk. So you can take, sir, this is the current position, current position. So now what I am doing, so try to understand what I am doing. Means I am merging in the sorted way. Means after the merging, all the array should be, means C array should be sorted way. Okay. So what is happening here? Now you just tell me if A is sorted and B is sorted. Okay. So what should be the number of, should be here? Means कौन सा number इस जगह पे आना चाहिए? So you can tell me which number should be here. मीन्स इसको समझ, इस तरीके से समझो, या तो देखो मिनी आपका शॉर्टेड वे में है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज, दैट विल बी द मिनिमम एलिमेंट इन दिस एरे. दिस एलिमेंट विल बी मिनिमम और दिस एलिमेंट विल बी मिनिमम. इज इट ओके बेटा? यस और नो? इफ दिस इज शॉर्टेड, हेलो, ओके, Yes. गुड. सो सो एनी नंबर मीन्स, या तो आई में से इसका मिनिमम, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए. अब आप चेक करोगे कि आई या तो आई में से आना चाहिए, ए में से जाएगा तो ये आई एलिमेंट जाएगा, बी में से जाएगा तो ये भी फर्स्ट एलिमेंट इसका जाएगा. इन दोनों में से एक एलिमेंट, इन दोनों में से एक एलिमेंट यहाँ पे पहुँचना चाहिए. सो वॉट यू विल डू, आप क्या करोगे? आप कंपेरिजन कर रहे होगे, कंपेरिजन करोगे ना, कि इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का कंपैरिजन करोगे. मींस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग वन कंपैरिजन बिटवीन ए आई और बी जे. ओके, ये कर रहा हूँ मैं, यहाँ समझना, इन दोनों को मैं ये कर रहा हूँ, इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ. मींस इसकी इंडेक्स आई है, इसकी इंडेक्स जे है, इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ, कंपैरिजन. अब देखो, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट है क्या? 2. कौन सा एलिमेंट बड़ा है? बीजे आपका बड़ा हो गया. ये हो गया. इज इट ओके? इज इट ओके? यस और नो, प्लीज टेल मी. ओके. Yes, sir. या, ये आपका जब बड़ा हो गया एलिमेंट, तो आपको ये समझ आ गया कि सर अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए, मुझे पता चल गया ये एलिमेंट छोटा है, तो जस्ट जो सी की इस वैल्यू पे जाएगा, जो सी की इस वैल्यू पे जो एलिमेंट जाएगा, वो एलिमेंट क्या होगा? सर सी की के इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट जाएगा? दैट एलिमेंट शुड बी ए आई. वो ए आई जाना चाहिए. अगर ये कंडीशन है सर अगर ये कंडीशन आती है, सर अगर ये कंडीशन है कि ए आई इज लेस देन बी जे, ओके, क्या समझना, बी जे आपका बड़ा है ए आई से, देन क्या हो रहा है कि मैं जो ए आई का एलिमेंट था, इसको कहाँ कॉपी कर दूंगा? इसको कॉपी कर दूंगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा यहाँ पे. इज इट ओके? तो सी के की पोजीशन पे क्या आ गया? ए आई आ गया. ए आई पहुंच गया सी के की पोजीशन पे. यहाँ तक मेरे साथ हो आप लोग? इज इट ओके? इफ दिस कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन समझ लो. यू आर विद मी? प्लीज रिप्लाई ऑल द स्टूडेंट, यस और नो. Yes. गुड. ओके, सो 1 विल बी हियर. यहाँ पे आपका 1 आ चुका है. अब देखो, जब 1 यहाँ पे आ चुका है, तो इस आई का खेल, अब करंट पोजीशन तो ये होगी नहीं. अगर 1 को मैंने यूज कर लिया, देन आई कैन से आई विल नेवर यूज दिस एलिमेंट. अगर मैंने 1 को यूज कर लिया, तो आई विल नेवर यूज दिस एलिमेंट अगेन. इज इट ओके? ये ठीक है? यस और नो? Yes, sir. सर हाँ, एक ना बैकग्राउंड नॉइज आ रही है. मेरी तरफ से आ रही है क्या? एक सेकंड, मैंने उस पर हाथ रख दिया था. अभी ठीक है क्या, या फिर? हेलो, यस. यस सर, अभी ठीक है. अभी ठीक है? शायद वो हाथ, या फिर वो इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो जाते हैं ना, ये रखो वो रखो, शायद उसकी वजह से कुछ हो रहा होगा, नॉइज आ रही होगी कंटिन्यूस. ओके, एनीवेज, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो वन एलिमेंट, वी विल नॉट टेक द एलिमेंट 1. ओके, देन व्हाट इज हैपनिंग, यू हैव टू इंक्रीज दिस पोजीशन. मींस आई को आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा? नाउ दिस आई विल बी इंडिकेटिंग, आई एम चेंजिंग द कलर.
this I will be indicating this thing. Is it okay? अब 1 का तो खेल खत्म हो गया, जो क्योंकि वो कॉपी हो गया, ठीक है। इस कंडीशन से क्या हुआ, कंपैरिजन किया और मैंने क्या किया, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो यहाँ पहुंचा दिया। इज इट ओके? तो ये फर्स्ट हमारा हो गया, यहाँ बताओ मुझे, ठीक है ना? यस यस सर। ओके। और ये इंडिकेटिंग, अब आई क्या इंडिकेट करने लगा, इसको इंडिकेट करेगा। मींस मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, आई को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आई एम इंक्रीजिंग आई प्लस प्लस। इज इट ओके? ये ठीक है? यस ओके। और एक चीज देखो, जब ये के इंडिकेट कर रहा था इसको, जब के इंडिकेट कर रहा था इसको और यहाँ पे एलिमेंट आ चुका, अब के में हमें एलिमेंट कहाँ पे भरना है, तो के को भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। अगला जो एलिमेंट आने वाला है वो के की सेकंड पोजीशन पे जाएगा, तो वी विल अगेन इंक्रीज द के, क्योंकि एक जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था उसकी पोजीशन तो फिल अप हो गई, तो हमें के को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। सो अगेन आई एम इंक्रीजिंग के प्लस 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 ऑल्सो। Means if I am writing the code, or you can say pseudocode, so I am taking the first condition, that is the first condition I am writing. If this thing is occurring, means ai is less than bj, then क्या करो, सीधा कॉपी कर दो सी एरे में इसके ए के एलिमेंट को कॉपी कर दो। ठीक है, तो मैंने कॉपी कर दिया, सी के में क्या किया, ए आई को कॉपी कर दिया। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा था आई 1 को, इसका काम खत्म हो गया, मीन्स ये कॉपी हो चुका। देन आई को इंक्रीज कर दो, सेकंड इंडेक्स पे लेके आ जाओ। जे के साथ कुछ हुआ नहीं तो जे का भी पोजीशन वही रहेगा, तो मैं जे को इंक्रीज करने से कोई मतलब नहीं है, जे तो वहीं का वहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये पोजीशन जो इंडिकेट कर रहा था फर्स्ट टाइम पे, अब उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोजीशन आपकी फेल हो चुकी है। नाउ सेकंड टाइम द कंडीशन इज लाइक दैट, ये इंडिकेट कर रहा है आई, ए का आई इंडिकेट कर रहा है 3 को। अभी भी जे कहाँ पे है, जे कहाँ इंडिकेट कर रहा है, अभी भी 2 पे ये रखा हुआ है। ठीक है, ये हमने इंक्रीज नहीं कर रहा था, तो जे अभी भी 2 को इंडिकेट कर रहा है, मीन्स इंडेक्स 1 को ही इंडिकेट कर रहा है। ओके, नाउ अगेन वी विल कंपेयर। अब क्या सिचुएशन है, तो यू कैन अंडरस्टैंड हियर। इस टाइम सिचुएशन क्या आ गई, सेकंड टाइम पे फिर से मैं कंपेयर करूंगा। क्या कंपेयर करूंगा कि सर आई विल कंपेयर ए आई और बीजे में कंपेयर करूंगा। क्या कंपेयर कर रहा हूँ सर, इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा। इस टाइम सिचुएशन देखो, ए आई की ये करंट पोजीशन थी, तो ए आई 3 है, और इस टाइम पे क्या है, बी बीजे अभी करंट पोजीशन आपकी 2 पे है, तो ये 2 है। इस टाइम इसका अपोजिट हो गया, मीन्स ए आई आपका इंक्रीज कर गया, ए आई आपका इंक्रीज कर गया बीजे से, तो कंडीशन चेंज हो गई। चलो इस कंडीशन में देख लेते हैं हम क्या क्या हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो इस टाइम क्या होगा, जस्ट राइट। अगर मुझे शॉर्टेड चाहिए, जो छोटा है उसको पहले लेके आना पड़ेगा, जो छोटा है उसको पहले लेके आना पड़ेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो सी के बनेगा, सी के क्या करना पड़ेगा, जो भी एलिमेंट आपका बी में है उसको यहाँ पे कॉपी कर दो। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। जो छोटा एलिमेंट होगा वो आ जाएगा, मीन्स आपका 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 जो था, ये जो 2 था वो आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 आ गया यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद सर, अब ये 2 आ गया, मीन्स इसका काम खत्म हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। इट विल बी रीच हियर। तो ये फर्स्ट वाले का काम जब खत्म हो गया तो मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। मीन्स सर मैं अगर ये करूँ, इसके आगे अगर मैं ये कर दूँ, ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसके आगे वाला पार्ट। अगर मैं ये करता हूँ कि सर अब मैं जे प्लस प्लस कर दूँ, तो मेरा क्या होगा, अगले इंडेक्स को इंडिकेट करने लगेगा। सेम मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पोजीशन फिल हो गई तो मुझे के को तो फिर से इंक्रीज करना पड़ेगा। अब के कहाँ पे आ जाएगा, के अपनी थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, मींस जो के पहले 2 को इंडिकेट कर रहा था, इट विल बी रीच हियर। ओके, ये थर्ड को, अगली इंडेक्स को इंडिकेट करने लगा। अब ये प्रोसीजर आपको करते जाना है। देखो अब मैं इसका कोड अगर लिख के दिखाऊं, तो नॉर्मल आपका कोड हो गया। अगर स्यूडो कोड लिखूं कि इफ पहली कंडीशन आपकी क्या थी, ए आई, इफ ए आई इज लेस देन बीजे, एक कंडीशन ये थी। और दूसरी कंडीशन अगर एल्स में यहाँ पे डाल दूं, एल्स, आपको एल्स डाल रहे हो तो दूसरी कंडीशन, अपने 2 ही कंडीशन है, तो एक कंडीशन लिखने के बाद सेकंड कंडीशन अगर ऐसा होगा नहीं तो वो अपने आप काम कर जाएगा। मीन्स दूसरी कंडीशन क्या होगी, ए आई इज ग्रेटर देन बीजे। ओके, ये कंडीशन हो जाती है। नाउ ओके,
सो यहाँ पे हमने क्या किया कि फर्स्ट कंडीशन में हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं कि मैं क्या कर दूं, कॉपी कर दूं जो आपका छोटा है, मींस एआई में जो भी एलिमेंट है वो सी एरे में कॉपी कर दूं, तो मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, एआई आ गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सर मैं जो भी इंडेक्स था उसको इंक्रीज कर देता था, आई जे, और यहाँ पे के में जो इंडेक्स था उसको इंक्रीज कर देता था। अदरवाइज मैं क्या कर रहा हूँ, एल्स में क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट वगैरह देख लेना, मैं वो नहीं लगा रहा हूँ। एल्स में क्या कर रहा हूँ कि मैं सी के अंदर क्या कर रहा हूँ, बीजे को कॉपी कर रहा हूँ, और इस बार किसको इंक्रीज कर रहा हूँ, जे को इंक्रीज कर रहा हूँ और के को इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा मर्जिंग का प्रोसीजर हो गया। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ मर्जिंग। और ऐसा कब तक चलता रहेगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कब तक चलता रहेगा, जब तक ये एक एटलीस्ट वन एरे के सभी एलिमेंट आपके कंपैरिजन में आ जाए। मीन्स अगर ये एम है और ये एन एलिमेंट है, ठीक है, तो कंपैरिजन कहाँ तक होगा, देखो ये कंपेयर करेगा, ये कंपेयर, जब तक ये एक कोई पर्टिकुलर एरे जब तक फिनिश नहीं हो जाती तब तक कंपैरिजन होने लगेंगे। मान लो ऐसा हुआ कि देखो अब क्या होगा, अब देखो सॉर्टेड वे में कैसे जा रहा होगा, फर्स्ट 1 2 तो मैंने लिख दिया, थर्ड आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 एलिमेंट आ जाएगा, ये 3 वाला, ठीक है, 3 आ जाएगा, उसके बाद ये 3 चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये 4 आ जाएगा, ये 4 यहाँ से चला जाएगा, फिर आपका 6 आ जाएगा, तो 6 यहाँ से चला गया, फिर 7 आ जाएगा, तो 7 यहाँ से, फिर आपका 8 और फिर 9, तो 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, उसके बाद 10 और 11, 10 और 11 आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब 14 जैसे ही आया उसके बाद की कहानी क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो एलिमेंट इक्वल होते तो शायद कंपैरिजन इस तरीके से होते रहते, बट आपके पास इसमें एलिमेंट ज़्यादा है, तो जैसे ही 14 का काम खत्म हुआ तो ये एरे फिनिश हो गई, ए एरे आपकी फिनिश हो गई। अब क्या करोगे, जो भी एलिमेंट बी एरे में है उसको डायरेक्टली कॉपी कर दो, जो भी इंडेक्सेस आपके रिमेनिंग है उस जगह, तो आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है इन एलिमेंट्स के लिए। देर इज नो नीड विद कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन तो अब होगा नहीं, तो यू कैन डायरेक्टली कॉपी दिस पार्ट हियर। तो जो भी है आगे एलिमेंट जो भी है बी में, तो यू कैन डायरेक्टली print और यू कैन से डायरेक्टली कॉपी दिस पार्ट हियर। ओके, सो आपका यहाँ पे 14 के बाद 18 20 23 और 25 वॉट एवर गिवन टू यू, तो वो आपका डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा, तो यू कैन कॉपी दिस पार्ट डायरेक्टली, कॉपी डायरेक्टली। तो कंपैरिजन मैंने बता दिया। इसके बाद कॉपी का पार्ट अगर आपका बचा है तो यू कैन राइट द कोड ऑल्सो आफ्टर दैट, कि जो भी आपका एलिमेंट कंपैरिजन के बाद अगर इस कंडीशन के बाद भी अगर आपका फिनिश हो जाता है कोई, तो यू कैन डायरेक्टली कॉपी दैट पार्ट, तो उस कोड को आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। और इस चीज़ को देखो लिखने का एक और तरीका है कि पहले आप क्या करो, इस चीज़ को मैं अगर इस तरीके से लिखूँ, शायद आप लोग जानते होंगे ये चीज़, सी प्लस प्लस इज इक्वल टू ए आई प्लस प्लस, ये पूरी चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले क्या कर रहा हूँ, मैं सी के में ए आई की वैल्यू डाल रहा हूँ, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, के को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। तो इस चीज़ को पूरे लिखने का तरीका है, एक लाइन में अगर लिखना है तो यू कैन पुट दिस थिंग ऑल्सो। यहाँ क्या कर सकते हो, सी के प्लस प्लस एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट बी जे प्लस प्लस। ओके, सो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो आई थिंक मर्जिंग प्रोसीजर इज क्लियर टू यू, कि मर्जिंग प्रोसीजर कैसे वर्क करता है। इज इट क्लियर टू यू, यस और नो, प्लीज रिप्लाई, अदरवाइज आई विल रिपीट दिस पार्ट। सो ये पार्ट समझ आ गया कैसे मैंने कंपैरिजन किया, एंड सो Yes. अदर स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई, इज दिस ओके, हेलो, रिप्लाई प्लीज। Yes, sir. ओके ओके, सो देखो एक्चुअली सैटरडे को भी आपकी लैब है, तो मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कंसेप्ट लगातार एक दिन के बाद अगले दिन ही लैब आ जाता है, तो बहुत कंसेप्ट एक साथ आ जाएंगे। तो अगर ये भी परसों लैब है फिर से, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, मेरे लिए भी, कि लगातार मैं कंसेप्ट पढ़ाए जा रहा हूँ और काम दिए जा रहा हूँ। सो आज मैं पूरा आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूँ उसके बाद बताता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा इतना ही आज।